Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We have discussed about the nomenclature in the previous lecture, and now I am going to explain the physical properties of amines. So let's we start. In the previous lecture we have discussed about the nomenclature, introduction of amines, what are the primary, secondary and tertiary amines, what is the nomenclature, how do we name them according to trivial and IUPAC naming. So let's we start with the physical properties. Physical properties इतनी ज़्यादा पेपर में आती नहीं है, but हाँ it may appear in the MCQs part. So let's we start. We will just read them. Amines are moderately polar substances. They have boiling points that are higher than those of alkanes, but generally lower than those of alcohols of comparable molecular weight. These are the molecular weights and boiling points of amines, and obviously you have no any option to just read them or keep in your mind that what are the boiling points of them, but keep this thing in your mind that as we are increasing the number of carbons, or as they are getting branched, so there is a change in the boiling point. So it is not a fixed pattern, it may be, but there is a point that they are getting decreased. For example, ethylamine, as you can see, it is a primary alkyl, but its boiling point is 17 degree. Then you have diethylamine at 7 degree. Don't check this one, I'm just checking about 17, 7 and 2.9. so as you can see, the alkyl radical concentration is decreasing the boiling point because of the non hydrogen bonding factor. because आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब कम होती जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली लो होता जाता है. व्हेन इट कम्स टू द polar NH bond, what is the meaning of they are polar substances? So provide hydrogen bonding in primary and secondary amine, but not in tertiary. That's why its boiling point is decreased. In amines it is not polar as the OH bond in alcohol. And if we are comparing between the amine group and RNH amine groups and alcohol group, so this thing must be clear to you that in amines there is no, they are not at that polar as the OH bonds in alcohol, because alcohol के अंदर there is a bit of the higher electronegativity difference between O and H as compared to NH group. होता है यहाँ पर भी है बट कम होता है, सही है. सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर जो है अल्कोहल के अंदर ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और यही चीज़ें आपके साथ रीजंस के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं. ओके, सो ऑन द सेकंड स्लाइड वी हैव अ स्ट्रक्चर ऑफ amines, and if you see the structure of amines, so it is clearly shown that amine का structure जो है it is a tetrahedral. as you can see there is a one lone pair attached here and these are the three bonds. tetrahedral structure है, tetrahedral structure है तो the hybridization is sp3. और इसके अंदर अगर हम बात करते हैं the nitrogen atom of most amine is likely that of ammonia. it is approximately sp3 hybridized. the three alkyl group or hydrogen atom occupy corners of tetrahedron. the sp or 3 orbital containing the unshared electron pair is toward the other corner. this is, and we describe the geometry of the amine by the location of atoms as being trigonal pyramidal. tetrahedral भी ठीक है, but correct name and the perfect name is trigonal pyramidal, and it is the example of sp3 hybridization. Fine. Next we have basicity of amine. what is the meaning of basicity? as if you know what are bases who can give lone pair and what are acids who can accept lone pair. Fine. इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करते हैं तो ये जो डिटेल है वो तो मैं आपको पढ़ के सुना दूंगी, ठीक है, वो मैं रीडिंग भी कर दूंगी. लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए कि इसके बारे में बात क्या की जा रही है कि इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन, अमाइंस का स्ट्रक्चर हम ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ इसके साथ अटैच हो सकती है. हाइड्रोजन्स हैं और आर्स हैं और कुछ भी है, ठीक है. सो इट हैज़ वन लोन पेयर फ्री लोन पेयर अटैच विद दैट. सो दिस लोन पेयर इज़ एक्चुअली फ्री है. it can nitrogen normally it donate its lone pair, and the species which can donate its lone pair, so the property which is you can say कि इस property को हम क्या कहते हैं, this is actually basicity, and this is the reason हम इसकी basicity की बात करते हैं. and if I am asking you about OH group has two lone pairs, but as compared to nitrogen case this is not its basicity is not good, you can say. why? because the electronegativity difference between the oxygen and hydrogen is bit high. so ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ये बहुत लालची टाइप इंसान होता है. लालची टाइप लाइक कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट जब हम कंपैरिजन करते हैं ना तो ये चाहता है और इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएँ, और बॉन्ड बना लूँ, और किसी के इलेक्ट्रॉन्स ले लूँ. सो दिस इज़ द रीज़न. अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस डिस्कस करते हैं तो ये जो आपका ऑक्सीजन होता है ना, ये फर्दर ऑन मज़ीद आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आपने देखा होगा कि
ऑक्सीजन दो इस तरह से क्या करता है, दो हाइड्रोजन को तो अपने साथ अटैच करके बैठा ही होता है, साथ में बाकी हाइड्रोजन जो होते हैं ना उनको भी ये चाह रहा होता है कि ये ले ले, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज इट्स हैज़ अ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट्स वाई। सही है। सो जब आप कंपैरिजन डिस्कस करेंगे, जब आप ये डिस्कस करेंगे कि हु इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो डोंट फॉरगेट कि ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट व्हेन इट कम्स टू द लोन पेयर डोनेशन, सो नाइट्रोजन डू इट इन अ बेटर वे रादर देन ऑक्सीजन, एंड द रीज़न ऑब्वियसली वो मैंने आपको जो बताया है सारा, कि ऑक्सीजन के पास होते दो लोन पेयर हैं वो, लेकिन वो इजीली डोनेट नहीं करता। लेट्स वी स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द स्लाइड, क्योंकि ये भी ज़रूरी है, आप लोगों को पढ़ के भी सुना दूँ क्या लिखा हुआ है। अमाइंस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल अलॉय स्पेस। अच्छा, एक ही बात है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स के जो न्यूक्लियस लविंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, उसी को कहते हैं, बिकॉज इट्स लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैन फॉर्म अ बॉन्ड विद द इलेक्ट्रोफाइल। मीन्स इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी, तो नाइट्रोजन क्या आएगा, डोंट यू वरी, मैं हूँ ना, मैं दूंगा इलेक्ट्रॉन आपको। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरेल बेस बिकॉज इट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम अ प्रोटॉन एसिड, और अच्छा देता तो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेप्ट क्या करेगा, प्रोटॉन कर लेगा, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये ब्रॉन्स्टेड-लॉरेल की बेसिसिटी का जो कॉन्सेप्ट था हमने वो पढ़ा है, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। दिस इज़ द एग्जांपल एंड यू कैन सी यहाँ पर ये हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देती हूँ। अच्छा चलें, इसको देख लीजिए। हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पर आपके जो सॉरी जी, यहाँ पर जी, यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर मिथाइल को डोनेट कर दिया और ख़ुद अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है। और साथ में जो आयोडाइड था वो अलग हो गया, फाइन, इसको ये साइड पे हो गया। और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, बिकॉज इसने एक एक्स्ट्रा अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ना, तो जो चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है आपके पास, इसके बाद यहाँ पर है जनाब यही सेम रिएक्शन है, उसको हमने इन जनरल फॉर्म लिख दिया है। जो रिएक्शन ऊपर लिखा हुआ है उसी को हमने जनरल फॉर्म में किसी भी चीज़ के साथ लिख सकते हैं। अब ये पढ़ लीजिए ज़रा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। यहाँ वही सारी बात लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। अमाइंस आर मोर बेसिक दैन अल्कोहल्स बिकॉज लोन पेयर इन नाइट्रोजन इज़ मोर अवेलेबल फॉर इनकमिंग एक्सेप्टर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, and oxygen is more electronegative than nitrogen. Because of the more electronegativity of oxygen, it has more attraction of lone pair and toward itself and as poor donor of lone pair. कौन, किसकी बात हो रही है, poor donor ऑक्सीजन की, as compared to nitrogen। ये नाइट्रोजन लिखा हुआ है, it is quite electronegative, consists that it has 8 protons. What we are talking here, that 8 protons and 8 proton and 7 protons, ये इनके एटॉमिक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन आपका एटॉमिक नंबर 7 होता है तो उसके प्रोटॉन्स भी क्या होंगे, 7 होंगे। और इसी तरह ऑक्सीजन के 8 होते हैं तो उसके ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए वो क्या कहता है, वो कहता है नहीं भाई मैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेना चाहता, देना चाहता, मैं तो प्रोटॉन दूंगा। कौन, अल्कोहल। सो इट होल्ड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रॉन इन इट्स बॉन्ड्स इन द लोन पेयर इट्स क्वाइट स्ट्रांगली। हु, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन probably have 1, 2 or 3 carbons. So on the nitrogen even acquire a little more than its fair share of electron density, so it's a little more available to share with the bare proton from an acid. So this is the whole story. Now comes the preparation of amines, alkylation of ammonia by alkyl halides. Alkylation of ammonia, what is the meaning of alkylation? Alkylation means कि we are going to allow ammonia to form alkyl, to get alkyl radical attached with itself. Okay, so ये आपके पास जो लिखा हुआ है इसको देखने से पहले इक्वेशंस देखिए। दिस इज़ योर अमोनिया NH3, इट इज़ हैविंग अ लोन पेयर। यहाँ आपका अल्काइल रेडिकल अल्काइल हलाइड है एंड दिस इज़ द रिएक्शन वी हैव स्टडीड इन द सब्स्टिट्यूशन SN रिएक्शंस। होप सो आपको याद नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ अ काइंड ऑफ SN रिएक्शंस। सॉरी, होगा क्या जी, होगा क्या यहाँ पर हमारे पास कि सिंपल RX जो है इसमें क्या करना क्या है, ये R अपने से यहाँ से X को कहेगा कि भाई तुम तो यहाँ से हटो, और ये अमोनिया को अपने साथ लगा लेगा। और अगेन नाइट्रोजन अपना जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है ना, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और X आपका नेगेटिव की फॉर्म में ही है तो वो नेगेटिव का नेगेटिव ही अटैच रहेगा। ये वही रिएक्शन है जो पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, बट एक नए तरीके से हम इसको पढ़ रहे हैं। दिस इज़ एक्चुअली अमोनोलिसिस ऑफ, इसको 2 नाम है, एक अल्काइलेशन ऑफ अमोनिया बाय अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं और सेकंड में अमोनोलिसिस भी कहते हैं। अमोनोलिसिस के अमोनिया को तोड़ रहे हैं हम।
अच्छा, एन अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद एन इथेनॉलिक solution of ammonia undergoes nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by ammonia NH2 group. सिंपल हो यही रहा है, ठीक है। NH2 ग्रुप जो है वो रिप्लेस करता है इसको, और द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ द CX bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. So this definition can appear in your exam. The reaction is carried out in a sealed tube at 373 Kelvin. The primary amines thus obtained behave as a nucleophile and can further react with alkyl halide to form secondary and tertiary amines. And finally quaternary ammonium salt, and this is the quaternary ammonium salt. ये था, ठीक है। that was the general reaction. अब आ जाइए मेन रिएक्शंस के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सिंपल RX है, X को निकालेंगे, इस X को निकालेंगे, इसकी जगह आपने NH2 को लगा देना है। दिस इज़ NH3 एक्चुअली, दिस इज़ NH3 में से आपने NH2 को जो है वो रिप्लेस करते जाना है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 3 हाइड्रोजन्स अगर अपने साथ लगाया होगा तो R के साथ नहीं लगेगा ये, तो आपने सिंपल ये करते जाना है, H कम करते जाएँ, R बढ़ाते जाएँ। इधर R1 था, इधर R2 हो गए, इधर R लास्ट में 3 हो गए, ठीक है। और जब आपने H भी लगाया हुआ है और R भी लगाया हुआ है और X भी लगाया हुआ है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन पॉजिटिव चार्ज ऑन N, क्योंकि अब वो अपनी वैलेंसी से ज़्यादा क्या कर रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर चुका है और वो बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेट्स वी चेक द एग्जांपल हेयर, प्रॉपर एग्जांपल है। द एग्जांपल इज़ मिथाइल ब्रोमाइड। एज यू कैन सी दिस इज़ मिथाइल ब्रोमाइड, सिंपल इट इज़ रिएक्टिंग विद अमोनिया एंड दिस इज़ द फाइनल फॉर्म, दिस इज़ द final form in that ammonia is this nitrogen pair is donated to this methyl radical, bond बन चुका है and this bromine is also attached. This is methyl ammonium bromide salt. Unfortunately such alkylation gave mixtures of product through a series of proton transfer and nucleophilic substitution reactions, and these are the कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि पॉली अल्काइलेशन हो रही होती है। पॉली अल्काइलेशन मीन्स कि हमारे पास हर तरह की अल्काइलेशन हो रही है, हमारे पास डाई अल्काइल भी हैं, प्राइमरी भी है, हमारे पास टर्शरी भी है, हमारे पास टेट्रा भी है। सो ये इसके अंदर हम कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अमोनोलिसिस हैज़ अ डिसएडवांटेज ऑफ yielding a primary, secondary and tertiary amines that I have explained, and also a quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a major product taking large excess of ammonia. The order of reactivity of halides with amine and why? Because iodide का स्ट्रक्चर बड़ा होता है, उसके बाद आपका ब्रोमाइड छोटा, उसके बाद क्लोराइड छोटा, एंड फ्लोराइड डोंट टेक पार्ट इन दीज काइंड ऑफ रिएक्शंस बिकॉज ऑफ उसका साइज़ बहुत छोटा होता है, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन? आपका RI, iodine. Then we have reduction of nitriles. What is the reduction of nitriles actually? In that reduction means addition of hydrogen, simple, and loss of oxygen. This is the definition of reduction. So let's we see it is a nitrile. What is, first of all, what is nitrile? Nitrile means कि cyanide group के साथ R attached हो जाएगा, तो this is nitrile. Fine. So हम reduction करा रहे हैं तो definitely we need something, तो हम यहाँ पे alkyl radical को ही यूज़ कर रहे हैं. So if you check this part is having, यहाँ पर हमारे पास कहीं हाइड्रोजन था, the answer is no, but what we are doing reduction, और रिडक्शन हम करा रहे हैं तो जनाब रिडक्शन शुड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन ज़रूर यूज़ करना है इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। फाइन। सो दिस इज़ व्हाट विल हैपन कि दीज बॉन्ड्स आर गोइंग टू बी ऑब्वियसली ब्रेक होंगे, और यहाँ आपके पास हाइड्रोजन की एडिशन होगी विद इन रिप्लेस ऑफ जहाँ आपके पास नाइट्रोजन के साथ था कार्बन था, वो बॉन्ड टूट जाएंगे, वहाँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन अगर आप देखेंगे कैसे है, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप और इसके साथ एक ही R लगा हुआ है, तो दिस इज़ प्राइमरी अमाइन एंड दिस इज़ द प्रिपरेशन। नाउ कम्स द सेकंड पार्ट। प्राइमरी अमाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल विद निकल और प्लेटिनियम, एंड यही जो आपके पास ऊपर वाला रिएक्शन था, इन्होंने इसको प्रॉपर तरीके से R की जगह एक रेडिकल लगा के प्रॉपर बता दिया है। रिएक्शन वही है, दिस इज़ R जो है ये रिडक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजनेशन है। डोंट फॉरगेट व्हेन एवर वी आर अलाउइंग इट टू रिडक्शन करा रहे होते हैं जब भी हम, तो वो रिएक्शन किसी न किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। और एज यू कैन सी दिस इज़ योर प्राइमरी प्रोपाइलमाइन, एंड यू कैन प्रिपेयर एनी ऑफ द जो भी आपसे रिएक्टेंट पूछा जाएगा, आप वो चीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड गिव प्राइमरी अमाइंस। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि यू हैव ए स्ट्रेचिंग, यू कैन हैव दिस फॉर्म, बेंजीन के साथ नाइट्रो बेंजीन है, सिंपल रिडक्शन ही करानी है तो क्या होगा, एज आई सेड प्रीवियसली, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन. एज यू कैन सी, सिंपल ऑक्सीजन निकाल दें, उसकी जगह अमाइन ग्रुप लगा दें C. नाइट्रोबेंजीन इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एनिलीन. दिस इज द रिडक्शन एंड दिस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द कैटलिस्ट. दिस इज स्कैंडियम HCl एंड सेकेंड आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको यूज़ कर सकते हैं. रिड्यूसिंग एजेंट सच एज दीज आर द रिड्यूसिंग एजेंट. आयरन कॉम्बो में यूज़ करते हैं स्टेनम के साथ हाइड्रोजन और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन. एग्जाम्पल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लेटिनम और प्लेटिनम और निकल, इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम. तो आपके पास ये क्या होगा, एनिलीन फॉर्म हो जाएगा. इफ़ यू रीड दैट पार्ट, हेयर इट इज़ रिटन एरोमेटिक अमाइंस आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड. एनिलीन इज प्रिपेयर्ड बाय नाइट्रोबेंजीन. इट इज़ अ वेरी सिंपल रिएक्शन. हाँ, दिखने में थोड़ा सा वो लग रहा है, लेकिन हाँ ये चीज़ें आप लोग याद कर लें, प्रॉब्लम नहीं होगी. रिडक्शन ऑफ अमाइड. अच्छा, द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अमाइड नाउ, बिकॉज वी वर स्टडिंग अमाइंस. अमाइड मीन्स के आपके पास, अच्छा अमाइंस क्या होते हैं, R के साथ NH2 का लगना. दिस इज़ अमाइन एक्चुअली. व्हाट इज़ अमाइड? अमाइड मीन्स कि यू हैव कार्बोनाइल ग्रुप एंड कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर आपके पास NH2 ग्रुप अटैच है तो वो अमाइड होते हैं. बस ये डिफरेंस है कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ठीक है. दिस कार्बोनाइल एंड इट इज़ हैविंग NH2 ग्रुप अटैच. और यहाँ आपके पास H भी हो सकता है, R भी हो सकता है, बट नॉर्मली R होता है, ठीक है. सो दिस इज़ प्रोपेनमाइड. इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनमाइड, दिस इज़ अमाइड, कार्बोनाइल ग्रुप. फाइन. इसकी हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो क्या होगा, द रीज़न अगेन द सेम रिएक्शन. दिस कार्बोनाइल, दिस ऑक्सीजन इज़ गोइंग टू बी रिप्लेस्ड विद व्हाट, हाइड्रोजन. सिंपल. ये ऑक्सीजन था, यहाँ आपने 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी. यू हैव प्रोपेनामाइन नाउ एंड दीज आर द कंडीशंस विच आर मैंडेटरी. ये कंडीशंस होना ज़रूरी है जिसकी वजह से रिएक्शन होगा. देन यू हैव एन मिथाइल प्रोपेनामाइड. एन मिथाइल प्रोपेनामाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपके पास एन मिथाइल लगा हुआ है, ये आपका प्रोपेन है और ये आपका अमाइड ग्रुप है, ठीक है. इसको हमने अगेन कंडीशंस, आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास बनेगा क्या, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन जो है वो फॉर्म होगा. हीटिंग द अमाइड विद द मिक्सचर ऑफ ब्रोमीन एंड KOH एंड NOH, अमाइड विल चेंज इनटू अमाइंस. एंड दीज आर द ऑल्सो कंडीशंस जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि अमाइड को आप अमाइंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो. और यहाँ आपको उन्होंने एक प्रॉपर रिएक्शन दे दिया है जिसके अंदर वो आपको अमाइड कह रहे हैं, वो ब्रोमीन और अल्कोहलिक पोटेशियम, सिंपल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है. तो ये आपके प्राइमरी अमाइन बन गया है, KBr बन गया है, पोटेशियम कार्बोनेट है और वाटर आपके पास जो है वो फॉर्म हो रहा है. उसके बाद आपको कह रहे हैं रिएक्टिविटी की बात करेंगे. रिएक्टिविटी आपके पास क्या है कि अमाइंस आर एक्ट एज लुईस बेस एज वी हैव डिस्कस्ड इट बिकॉज इट डोनेट लोन पेयर of electron to form a new bond to a hydrogen. Because alkyl groups are electron donating, they increase the electron density on nitrogen, which makes the amine like more basic than ammonia. And the reason is obviously because ये अपने electrons को lose किए जा रहे हैं, lose कर रहे हैं in short के ये अपने electrons को दे रहे हैं किसको, अल्काइल रेडिकल्स को, ताकि उनके साथ बॉन्ड बनाएं. तो ये मोर बेसिक होते हैं देन अमोनिया, ठीक है. Thus the pKa of these primary amines is higher than pKa of ammonium ion and it is a stronger base because obviously base की प्रॉपर्टी ही है ना कि वो पेयर डोनेट, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है. तो ये इनके pKa वैल्यूज़ जो हैं उनका कंपैरिजन किया गया है. 1 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मेक्स द अमाइन मोर बेसिक. Primary, secondary and tertiary alkyl amines are more basic than ammonia because of the electron donating inductive effect of the R group. Then we have, due to the electron releasing nature of alkyl radical, it pushes electron toward nitrogen and thus make the unshared electron pair more available for sharing the proton of the acid. Moreover the ये सिर्फ reading part है, लेकिन ये पढ़ लीजिए कि क्या क्या होता जा रहा है. Moreover the substituted ammonium ion formed from the amine gets stabilized due to the dispersal of the positive charge by the +1 effect of the alkyl group. Hence alkyl amines are stronger bases than ammonia. ये सारा उसी की explanation दे रहे हैं. Thus the basic nature of aliphatic amine should increase with increase in number of alkyl radical. This trend is followed by the gaseous phases also. The order of basicity of amines in the gaseous phase follows the expected order: tertiary amines, secondary amines and then primary amines. और ये आपके पास order है कि सबसे ज़्यादा basicity कौन शो करता है, then secondary, then primary और सबसे लास्ट में ही है. In the aqueous phase, the substituted ammonium cations get stabilized not only by electron releasing effect of the alkyl group but also solvation with water molecule. The greater the size of the ion, lesser will be the solvation and the less stabilize. ये बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं. आई थिंक आपने फर्स्ट ईयर अगर याद हो, चलें थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे आपके पास साइज़ बड़ा होता जाएगा इनका, उस तरह से सॉल्वेशन एनर्जी
साइज़ बड़ा है तो वो चीज़ ईज़िली इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, ईज़िली इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको सराउंड करने में ईज़ी कम एनर्जी लगेगी, ज़्यादा लगेगी? द आंसर इज़ कम एनर्जी लगेगी। जो चीज़ खुद ही अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने लगी हुई है तो कोई दूसरा आएगा उसको पकड़ने के लिए तो उसकी एनर्जी तो कम लगेगी ना, तो वो तो पहले तैयार बैठा हुआ है, सही है। एंड द लेस स्टेबलाइज इज़ द आयन। द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आयन्स आर एज फॉलोज। लेट्स वी चेक द रिएक्टिविटी। यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि प्राइमरी अमाइंस द रिएक्टिविटी रिएक्शंस ऑफ अल्काइल एल्डिहाइड्स एंड कीटोन विद अमोनिया प्राइमरी अमाइंस फॉर्म अमाइन अच्छा यहाँ पर एक चीज़ वो आपको कह रहे हैं डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव्स ये होंगे जिसके अंदर हम अमाइन से नई चीज़ें जो हैं वो बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन, दिस इज़ योर एल्डिहाइड और कीटोन। सिंपल होगा क्या कि दिस एन, ये जो NH2 है इसके साथ जो 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन ऊपर नीचे जो लगे हुए हैं, इधर से ये हाइड्रोजन हम निकालेंगे, डीहाइड्रोजनेशन इन शॉर्ट करवा रहे हैं और ये बॉन्ड्स बना लेगा अपना किसके साथ, कार्बन के साथ। और यहाँ पर आपका ये चीज़ आपके पास बन रही है, इसको इमाइन कहते हैं। दे आर इमाइन इज़ द डेरिवेटिव एंड ऑल्सो नेम नोन एज शिफ्ट बेसिस कंपाउंड हैविंग CN फंक्शन। सो डोंट फॉरगेट ये CN अकेला नहीं है, इसके साथ R भी है, ठीक है। रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड देख लेते हैं ज़रा सा कि असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस क्या हैं इसके। जी, असाइल क्लोराइड, असाइल सबसे पहले तो अब ये देख लीजिए कि असाइल होता क्या है। ये मैं डायरेक्ट आपको रिएक्शंस बता रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। असाइल ये चीज़ होती है, अगर आपके पास अल्काइल रेडिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल R था, R के साथ ये हैलोजन एटम कोई भी अटैच हो, अल्काइल रेडिकल है। इसी तरह जैसे मैंने आपको अमाइड बताया था ना, अमाइड में होता है कार्बोनाइल के साथ अगर NH2 है, इसी तरह अगर कार्बोनाइल के साथ कोई भी हैलोजन अटैच है वो असाइल होता है, ठीक है। सो इसका रिएक्शन अगर हम असाइल के साथ कराएंगे, असाइल रेडिकल कोई भी हो सकता है, असाइल रेडिकल हमारा कोई भी हो सकता है। ये हमारा प्राइमरी अमाइन है, कुछ भी है, ठीक है। इसको हमने इथेनॉइल क्लोराइड के साथ जो है, इथेनॉइल क्लोराइड क्यों है, 2 कार्बन है और 2 कार्बन आपके इथेनॉइल क्लोराइड, इसका नाम है, ये नेमिंग है। आगे आना है ये वाला फंक्शनल ग्रुप आगे पढ़ना है, फ़िलहाल सिर्फ नाम देख लें। ये अगर इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये बनेगा क्या, सिंपल, हमने कोई एडिशन प्रोडक्ट होती है, ये कोई बॉन्ड इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ यहाँ पर वो नहीं होगा कि हम निकाल देंगे, यहाँ से सिर्फ एक निकलेगा तो ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये Cl निकलेगा और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, HCl बना लेंगे, बाकी सारा एक साथ लिख दीजिए। सो ये आपके पास जो चीज़ बन रही है इट इज़ N मिथाइल इथेनामाइड प्लस HCl आपने इधर से रिमूव कर दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट में आप अराइल ग्रुप के साथ अगर आप बात करते हैं, अराइल ग्रुप के अंदर आपके पास सिंपल यहाँ से H, यहाँ से Cl, बाकी सारा जो है N के साथ ये सारा का सारा लिख दो। तो जब आप ये लिख दोगे इथेनॉइल क्लोराइड को तो यह बनेगा N फिनाइल बेंजामाइड प्लस HCl आपके पास फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद रिएक्शन विद एसिड एनहाइड्राइड की बात करेंगे। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। अच्छा, इस बात की परेशानी हो कि ये रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं, ये आगे पढ़ने हैं हमने दोबारा, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर भी इथेनोइक एनहाइड्राइड क्या है, सबसे पहले तो एसिड एनहाइड्राइड सुन लीजिए। हमारे पास ये होता है CH3COOH, ठीक है, CH3COOH होता है डबल बॉन्ड के साथ, और 2 मोल्स हैं अगर हमारे पास इसके CH3COOH के। तो अगर हम ये काम करें कि हम यहाँ पर ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें तो पीछे जो चीज़ बचती है ना वो ये बचेगी CH3COOCH3, ये वाला पूरा, ठीक है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल एसिड एनहाइड्राइड, ये इथेनोइक एनहाइड्राइड एक ही चीज़ है। ये इनका आपस में रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सिंपल है, दिखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन ये प्रोपाइलमाइन है आपका, और ये एसिड एनहाइड्राइड था। आपने इस सबको एक साथ लिख देना है CH3COOH को, ये क्या हो गया, एसिटिक एसिड बन गया। प्लस जो बाकी चीज़ बचेगी उसको एक साथ लिख दें। बाकी चीज़ कौन सी है, ये आपका ये था, और इसके साथ इस चीज़ को लगा दें। तो इसके साथ आपने इस चीज़ को लगाया तो इसको नाम देंगे एन प्रोपाइल इथेनामाइड। इसी तरह आप नीचे अगर देखते हैं डाईइथाइल अमाइन है, डाईइथाइल अमाइन के अंदर आपने क्या करना है, सिंपल इथेनोइक एनहाइड्राइड, वही एसिड एनहाइड्राइड, आपने बेसिकली एसिटिक एसिड बनाना है। दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमने आगे पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है तो ऑब्वियसली हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी आ रहा है, डाईइथाइलामाइन की भी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो हमें पढ़ना ही है। तो बाकी सारा आपने क्या करना है, इस N के साथ सिंपल रिप्लेस कर दें, H की जगह ये सारा लगा दें आप,
तो वही हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो वही चीज़ है, N के साथ ये पूरा CH3 लगा दिया, इसको नीचे लगा देना है, इस चीज़ को नीचे, और ये चीज़ इसके यहाँ पर लगा दी है, ठीक है। सो और साथ में आपने एसिटिक एसिड बना दिया है। सो दिस इज़ N डाईएथाइल एथाइलीन अमाइड। उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली ये भी देख लीजिए कि नाइट्रस एसिड इज़ अनस्टेबल एंड मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन सोल्यूशन मिक्सिंग सोडियम नाइट्राइट विद एसिड। दिस इज़ सिंपल नाइट्रस आपका एसिड है जो कि NO2 नेगेटिव की फॉर्म में, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं इन द रिएक्शन सोल्यूशन बाय मिक्सिंग सोडियम नाइट्राइट विद एसिड। और ये आपके HNO, ये आपका HNO2 है, इसको आपने प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड टू यील्ड अ डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट देख लीजिए, डायज़ोनियम सॉल्ट आपका ये होता है जहाँ आपके नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड आपका NCl लगा होता है, एक साइड आपका इथाइल डायज़ोनियम आइन जो है वो लगा होता है, बट दिस इज़ अनस्टेबल प्रोडक्ट। सो लेट्स वी स्टार्ट एंड लेट्स वी चेक दिस एग्जाम्पल फर्स्ट। दिस इज़ योर प्राइमरी अमाइन, सॉरी, ओके, दिस इज़ योर प्राइमरी अमाइन। इसको आप रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ द एसिड और सोडियम NO2 की प्रेजेंस में आपने इसको रिएक्शन करवाना है। होगा क्या कि आपके पास ये जो चीज़ है ये टूटेगी। इसने क्या करना है, आपके पास N तो ऑलरेडी अटैच था ना, ये N अटैच था, इस N ने इस अल्काइल रेडिकल को तो अपने साथ लगा ही रखना है, सही है। साथ में क्या है कि ये जो आपके पास यहाँ पर N था और यहाँ पर ये जो यहाँ एक्चुअली ये दोनों भी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने इस हाइड्रोजन की जगह NCl लगाना है। जो ये चीज़ बन रही है इसको हमने अनस्टेबल डायज़ोनियम क्लोराइड बोला है। फर्दर ऑन क्या होता है, इसकी रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट जब होगी तो वो किस तरह से रीअरेंज होगा कि ऑब्वियसली ये जो है ये स्टेबल तो नहीं है, इसने क्या करना है, यहाँ से अपना अब ये वाला जो बॉन्ड है इन्होंने ये बॉन्ड तोड़ देना है। ये बॉन्ड टूटेगा किस फॉर्म में टूटेगा, जब N और CH के दरमियान खींचातानी स्टार्ट होगी, किस चीज़ की, कि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो N कहेगा भाई मैं तो स्टेबल नहीं हूँ क्योंकि मैं तो अनस्टेबल हो गया हूँ आप लोगों के साथ लग के। तो ये क्या करेगा, ये ख़ुद को अलग करेगा, और ख़ुद को किस फॉर्म में अलग करेगा कि यहाँ पर ये N है, एक मिनट इसको मैं जूम करके दिखा दूँ जी। यहाँ पर कितने N हैं आपके पास, यहाँ पर आपके पास 2 N है, ठीक है। इसको अलग करें, जब इसको अलग करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज आपने इस एथाइल रेडिकल पे लगा दिया, वो लगाया आपने। अब ये जो दोनों N है इनको आपने एक साथ इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कह दें, किस फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में लिखेंगे। और फर्दर ऑन ये चीज़ें जब रिएक्ट करेंगी ना, फर्दर ऑन ये चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं आप वाटर के साथ, यहाँ पर आपके पास HCl क्लोराइड की फॉर्म भी मौजूद थी ऑब्वियसली। तो ये कौन कौन सी चीज़ें बनाएंगे, ये आपको इथेनॉल देंगे, ये आपको इथाइल रेडिकल देंगे, प्लस आपको इथीन देंगे, और साथ में आपको, क्योंकि एसिडिक मीडियम में आप रिएक्शन करा रहे हैं तो हाइड्रोजन आयन की फॉर्म या एसिड आपके पास दोबारा से रीफॉर्म हो जाएगा, सही है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन सो डू आस्क। अल्लाह हाफ़िज़।